السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 47 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کوئی آواز سیٹی کی طرح اس کی سماعت میں گونجی۔ کافی دیر بعد اس نے بھاری پپوٹے بامشکل اٹھائے اور اندھیرے میں جلتے بجھتی روشنی کے منبع کی طرف دیکھا۔ موبائل۔ بدوقت اس نے بازو بڑھا کر بجتا ہوا موبائل اٹھایا۔ جیحان کالنگ۔ اس کی ساری نیند اڑ گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور کال پک کی۔ ساری ناراضگی رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئی تھی۔ جیحان؟ اس کی آواز ابھی بھی نیند سے بوجھل تھی۔ حیا؟ وہ دھیمی آواز میں کہتا۔ ذرا رکا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے ریموٹ اٹھا کر اے سی آف کیا۔ کمرہ بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ فائن۔ تم سو رہی تھی؟ ہاں۔ اس وقت میں؟ فٹ بال تو کھیلنے سے رہی، اس نے سوچا۔ ممی سو رہی ہیں؟ ظاہر ہے۔ اٹھاؤں انہیں؟ نہیں نہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ ماموں ہے یا ڈرائیور؟ وہ جیسے سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ نہیں، ابا اور اماں شام میں لاہور گئے ہیں، کوئی فوتگی ہو گئی تھی، صبح ہی آ جائیں گے۔ کیوں؟ وہ ایک دم چونکی۔ تم کہاں ہو؟ میں ایئرپورٹ پر ہوں، اور مجھے تمہارے گھر کا راستہ معلوم نہیں ہے۔ تم مجھے لینے آ سکتی ہو؟ اوہ ہاں، تم رکو، میں آ رہی ہوں۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے بستر سے اتری۔ منہ دھو کر عبایا پہن کر وہ چابی لیے خاموشی سے باہر نکل آئی۔ ڈرائیور ابا کے ساتھ گیا تھا، ویسے بھی وہ پارٹ ٹائم تھا، ایسے میں وہ خود جائے، اس کے علاوہ وہ دوسرا کوئی حل نہیں تھا۔ اسلام آباد کی خوبصورت صاف ستھری سڑکیں خالی پڑی تھیں، ابھی رات باقی تھی۔ اسٹریٹ پولس کی زرد روشنی سڑک کو جگمگا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر اس نے جیحان کو کال کر کے آنے کا پیغام دیا۔ اس کا ترکی کا نمبر رومنگ پہ تھا۔ السلام علیکم۔ چند ہی منٹ بعد وہ دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ ایک چمڑے کا بھورا دستی بیگ اپنے قدموں میں رکھا اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ وعلیکم السلام۔ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے حیا نے ذرا کی ذرا نگاہ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ سیاہ پینٹ میں آدھے آستین والی گرے شرٹ پہنے ہوئے تھا، وہی ماتھے پر گرتے ذرا بکھرے بکھرے بال۔ ایئرپورٹ کی بتیاں اندھیرے میں اس کے چہرے کو نیم روشن کیے ہوئے تھیں۔ وہ اسے پہلے سے ذرا کمزور لگا۔ اسے ترکی سے آئے 1.5 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی فرق واضح تھا۔ کار سڑک پر رواں دواں تھی، دونوں خاموش تھے۔ آخری ملاقات کا تناؤ اور بوجھل پن ابھی درمیان میں حائل تھا۔ ممی اٹھی تو نہیں؟ نہیں۔ وہ ذرا دیر کو رکی۔ تم آئے کیوں نہیں؟ سب پوچھ رہے تھے۔ مصروف تھا۔ وہ گردن ذرا ترچھی کیے باہر ویران اندھیری سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، کہنے کو جیسے کچھ نہیں تھا۔ کیا تم پہلے مجھے قبرستان لے جا سکتی ہو؟ حیا نے سر ہلا دیا۔ قبرستان گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ جلد ہی وہ پہنچ گئے۔ باہر نیلا سا اندھیرا چھایا تھا۔ سوالیہ نشان کی صورت بنے 7 بہن بھائی
सितारे आसमान पे चमक रहे थे। फूफा की कब्र आपके दादा की कब्र के साथ ही है, हया ने उसे बताया। अहाते में जिहान के वालिद और दादा की कब्रें दाखिली दरवाजे के साथ ही एक तरफ थीं। एक दरख्त उसके दादा की कब्र पे साया कर रहा था। वो सीने पे बाजू लपेटे कब्रिस्तान के दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। यहाँ से वो जिहान को बआसानी देख सकती थी। जिहान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता दोनों कब्र के पास आया। फिर धीरे से वो सिकंदर शाह की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठता गया। दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। अब वो दुआ मांग रहा था। हया उसके अकब में थी, सो उसका चेहरा नहीं देख सकती थी। दुआ के बाद वो काफ़ी देर सर झुकाए एक पंजे के बल कब्र पर बैठा रहा। उंगली से वो मिट्टी पे लकीरें खींच रहा था। फिर जब वो उठा तो हया जाने के लिए पलट गई। घर आकर वो अंदर दाखिल हुआ तो हया ने आहिस्तगी से लॉन्च का दरवाज़ा बंद किया और 2 उंगलियों से नकाब नीचे खींचते हुए उतारा। तुम आराम कर लो, मैं ऊपर कमरा दिखाती हूँ, वो अजनबी से अंदाज में कहती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जिहान खामोशी से उसके पीछे ऊपर आया। दस्ती बैग हाथ में पकड़कर कंधे पर डाल रखा था। हया दरवाज़ा खोलकर एक तरफ खड़ी हो गई। साफ सुथरा सा गेस्ट रूम। कुछ खाओगे? उसने चौखट पे खड़े किसी रस्मी मेज़बान के लहजे में पूछा। जिहान ने बैग बेड पे रखा और साथ बैठा। बस एक कप चाय, मेरे सर में दर्द है। वो झुककर जॉगर्स के तस्मे खोल रहा था। वो उल्टे कदमों वापस पलटी। चंद मिनट बाद जल्दी जल्दी चाय बना कर लाई। वो बेड पर नीम दराज आंखों पे बाजू रखे हुए था। चाय उसने कब साइड टेबल पर रखा। वो हिला तक नहीं। जिहान मगर वो सो चुका था। हया की निगाहें उसके पाँव पे फिसली। जॉगर्स के तस्मे खोल चुका था मगर उतारे नहीं। पता नहीं क्यों उसे तरस सा आया। शायद वो थका हुआ था, शायद बीमार था। उसने एसी ऑन किया और दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। सुबह वो देर से उठी। लॉन्च में आई तो फुप्पो और फातिमा चाय पी रही थीं। 11 बज चुके थे। नूरबानो, मेरा नाश्ता। नूरबानो को पुकार कर वो उनके पास आ बैठी। फातिमा लाहौर वालों का तस्करा कर रही थी। आप लोग कब आए? सुबह 8 बजे पहुंच गए थे। तुम सो रही थी। फातिमा मुस्कुरा कर कहने लगी। हाँ, अच्छा। जिहान उठ गया। हया की निगाह सीढ़ियों के ऊपर फिसली तो यूं ही लबों से निकला। वो दोनों एकदम उसे देखने लगे। जिहान, वो एकदम सीधी हुई। वो सुबह पहुंच गया था। ऊपर कमरे में है। आपको नहीं पता चला? नहीं, वो आ गया। सबीन सिकंदर के चेहरे पे एकदम चमक सी उभरी, खुशगवार सी हैरत। वो बाप के जनाजे के तीसरे दिन पहुंच रहा है, मगर इधर कोई नाराज़ी नहीं। जी, मैं देखती हूँ। वो खुद ही उठ आई। ऊपर उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो यकबस्ता हो चुका था। एसी तन का
तब का ऑन था। उसने जल्दी से एसी बंद किया और पंखा चला दिया। जिहान इसी हालत में जूतों समेत लेटा था, आंखों पे बाजू रखे। वो शायद नींद में भी किसी को अपनी आंखें नहीं पढ़ने देता था। तपाई पे धरी चाय पुरानी और ठंडी हो चुकी थी। सोचा उठा ले, फिर ख्याल आया कि रहने दे, उसको पता तो चले कि वो उसके लिए चाय ले आई थी। वो दोपहर के खाने तक भी नहीं उठा। फुप्पो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, सो उसके उठने का इंतज़ार कर रही थी। दोपहर में ज़ारा आ गई। मौसम अच्छा था, दोनों ने शॉपिंग प्लान कर ली, मगर जब वो अबाया पहनकर बाहर आई तो फिर से एक्शन रिप्ले शुरू हो गया। तुमने अबाया कब से लेना शुरू कर दिया? वही हैरत, सवाल, तफ्तीश, तशवीश। एक लंबा और जामिया सा जवाब देकर भी उसे लगा कि ज़ारा गैर मुतमईन है, वो गैर आरामदेह भी। शॉपिंग करते, जूते देखते, कपड़े निकलवाते और फिर आखिर में राहत बेकर्स के सामने पार्किंग लॉट में बैठे स्कूप का स्लैश पीते हुए ज़ारा बार बार एक गैर आरामदेह निगाह उस पे डालती, जो पूरे एतमाद से अबाया और निकाब में बैठी स्लैश पी रही थी। यार, चेहरे से तो उतार दो। ज़ारा, मेरा ना दम घुट रहा है, ना ही मरने लगी हूँ। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल बैठी हूँ। अगर तुम नहीं हो तो बताओ, वो एकदम बहुत संजीदगी से कहने लगी। वो हया सुलेमान थी। वो आयशे गुल की तरह हर बात नरमी से सह जाने वाली नहीं थी। जब वो अपने ज़माने जहालियत के लिबास पर किसी को बोलने का मौका नहीं देती थी, तो अब निकाब पर क्यों किसी को बोलने दे? सिर्फ हिजाबी लड़की सब्र क्यों करे? उसकी राय में बहुत ज़्यादा चुप रहने को भी कमज़ोरी समझा जाता था। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी। ज़ारा ज़रा बौखला गई थी। वो सर झटक कर स्लैश पीने लगी। बाहर पार्किंग लॉट में चंद माह पहले के मनाजिर अब भी रकम थे। डॉली उसे सबसे पहले उसी जगह पे मिला था। मेजर अहमद यानी पिंकी से मिलकर उसे जो उलझन हुई थी कि वो पिंकी कैसे बना, अब वो ख़त्म हो गई थी। वो तो उसकी जॉब का हिस्सा था। पता नहीं वो ये बात पहले क्यों नहीं समझ सकी। वो वापस आई तो दिल ज़रा बोझल था। ज़ारा और उसका मदारा अब मुख्तलिफ हो गया था। पता नहीं डीजे अगर होती तो कैसा रद्दो अमल देती। अब अजनबी का टैग जो पेशानी पे लग गया था। लॉन्ज में सब बड़े बैठे थे, ताया, ताई, अब्बा, अम्मा, फुप्पो और सामने एक सोफे पर संजीदा सा बैठा जिहान। वही सुबह वाले कपड़े, मगर बाल गीले थे, शायद अभी अभी फ्रेश होकर नीचे आया था। वो सलाम करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसे लगा कि वो उसे देख रहा है। उसने बेख्तियार पलट कर देखा। जिहान ताया फुरकान की तरफ मुतवज्जो था। वो उसे नहीं देख रहा था। वो सर झटक कर अंदर आ गई। दोबारा उसकी जिहान से मुलाकात रात के खाने पर हुई। वो ज़रा देर से डाइनिंग टेबल पर पहुंचा था। अब्बा मरकज़ी कुर्सी पर थे। हया फातिमा के साथ एक तरफ थी। जिहान ने जो कुर्सी
खींची। वो हया के मद मुकाबिल थी, मगर वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी। वो भी यही कर रहा था, बल्कि वो तो शायद हमेशा से यही करता आया था। कितनी छुट्टी है तुम्हारी? अब्बा खाने के दौरान पूछने लगे। वो सर झुकाए कांटे से सलाद का टुकड़ा उठाते हुए बोला, कुछ कंफर्म नहीं है। छुट्टी कैसी? अपना रेस्टोरेंट है इसका, बल्कि पाशा का। उसने तल्खी से सोचा। 1-1.5 हफ्ता तो हूँ, फिर शायद चला जाऊँ। मम्मी को यहीं अपार्टमेंट ले दूँगा। हया ने चौंक कर सर उठाया। फुप्पो, आप अब यहीं रहेंगी? उसके चेहरे पे खुशगवार सी हैरत उमड़ आई थी। सबीन फुप्पो ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर असबात में हिला दिया। सिर्फ सिकंदर के लिए वहाँ थी, अब उधर रहने का जवाब नहीं है। तो जिहान, आप भी यहीं शिफ्ट हो जाओ। फातिमा ने ज़रा दबे दबे से जोश से कहते हुए एक नज़र सुलेमान साहब को देखा। वो भी ज़रा उम्मीद से जिहान को देखने लगे। वही बेटी को अपने करीब रखने की ख्वाहिश। और अपार्टमेंट की क्या ज़रूरत है, यही घर है ना सबीन का। जिहान हल्का सा मुस्कुराया। वो पूरे दिन में पहली दफ़ा मुस्कुराया था। रहने दे मामी, मेरे नसीब में पाकिस्तान में रहना लिखा ही नहीं है। उसकी आवाज़ में कुछ था कि हया हाथ रोककर उसे देखने लगी। वो सर झुकाए खाना खा रहा था, मगर चेहरे पे वही मुस्कुराहट, वही चमक थी जो वो कभी कभी उसके चेहरे पे देखा करती थी, ख़ास मौक़ों पे, ख़ास बातों पे। खैर, कभी वो उसकी वजह भी जान ही लेगी। वो धीरे से सर झटक कर खाना खाने लगी। सुबह फजर पढ़कर सोने की बजाय वो ऊपर आ गई। जिहान के कमरे के सामने से गुजरते हुए एक नज़र उसने बंद दरवाजे पर ज़रूर डाली थी। कुछ चीज़ें करने से इंसान खुद को कभी रोक नहीं पाता। छत पे हर अतराफ लहलहाते गमलों की सरहद बनी थी। अब्बा का शौक मुंडेरो हाँ वहाँ से काफ़ी ऊंची थी। मुंडेर के साथ ही केन का एक झूला रखा था। इस खूबसूरत सुबह में वो झूले पर आ बैठी और गर्दन मोड़कर मुंडेर के सुराख से बाहर देखा। मुंडेर उसके सर से ऊंची थी, मगर डिज़ाइन के तौर पर बने बड़े बड़े सुराख से नीचे का लॉन और सड़क साफ नज़र आती थी। वो यूं ही तिरछी होकर बैठी कॉलोनी पे उतरती सुबह देखे गई। हर सौ खामोशी और ताजगी थी। कभी कभी परिंदों के बोलने की आवाज़ आ जाती, या फिर किसी के भागने की। वो ज़रा चौंकी। दूर सड़क पर कोई भागता आ रहा था। ट्रैक सूट में मलबूस जॉगिंग करता शख्स। उसे एक लम्हा लगा था पहचानने में। जिहान। वो हैरान हुई थी। वो कब उठा, कब घर से निकला, मालूम नहीं। वो उसे देखती रही। जिहान अब घर के सामने से गुजरकर मुखालिफ सिमत दौड़ता जा रहा था। वो गर्दन पूरी मोड़कर उसको देखे गई। चंद कदम दूर वो रुका और ठिठक कर पीछे सड़क को देखा, जैसे उसे महसूस हुआ हो कि कोई उसे देख रहा है।
मगर वो सड़क पर ही देख रहा था, ऊपर नहीं। वो जल्दी से झूले पर से उठी और अंदर दौड़ गई। वो फिर से पकड़े नहीं जाना चाहती थी। सब्ज ट्यूलिप, फूलों की मार्केट और वो दुकानदार, उसे सब याद था। जब जिहान ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो वो किताबें खोले बैठी थी। दस्तक पे चौंकी और फिर उठकर दरवाज़ा खोला। उसे सामने खड़े देखकर दिल अजीब सी मुतज़ाद कैफियत का शिकार होने लगा। हया, क्या तुम फारिग हो? वो बहुत दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। हाँ, क्यों? उसने दरवाज़ा ज़रा ज़्यादा खोल दिया ताकि वो बिस्तर पे फैली उसकी किताबें देखकर जान ले कि वो हरगिज़ भी फारिग नहीं है। ओके, तो फारिग ही हो, ठीक। उसने समझकर सर हिलाया। यानी तुम मेरे साथ मार्केट चल सकती हो? श्योर। उसने शाने उचकाए। हालांकि उसे उस पर बहुत गुस्सा था। वो उससे मुखातिब भी नहीं होना चाहती थी। उसने हमेशा गलत बयानी ही की थी। उसे जिहान से बहुत गिले थे, मगर फिर भी जाने के लिए तैयार हो गई। वो उसे इनकार नहीं कर सकती थी। क्या खरीदना है ताकि उसी हिसाब से मतलूबा जगह पर जाएं? कपड़े वगैरह। जल्दी में निकला था, ज़्यादा सामान नहीं उठा सका। एक तो जब वो मजहब और शाइस्ता होता था तो उससे ज़्यादा नर्म गो कोई नहीं था। वो अंदर ही अंदर तिलमिलाती हुई बाहर आई थी। कोई और नहीं मिला था उसे साथ ले जाने के लिए। उसे ज़रूर घसीटता था अपने हमराह। शॉप में उसका साथ देने के लिए वो भी रेक पर कपड़ों के हैंगर्स उलट पुलट कर देख रही थी। जिहान एक कुर्ते का हैंगर कंधे से लगाते हुए सामने कद आवर आईने में खुद को देख रहा था। हया उसके करीब ही खड़ी थी, सो आईने में वो भी नज़र आ रही थी। उसका अक्स देखते हुए जिहान ज़रा सा मुस्कुराया। तुमने वो कार्टून देखे हैं, निंजा टर्टल? वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से पूछने लगा तो उसने सादगी से सर अज़बात में हिला दिया। हाँ, तो वो जवाब दिए बिना बेसाख्ता उमड़ आती मुस्कुराहट दबाते हुए हैंगर पकड़े पलट गया। चंद लम्हे वो उलझी खड़ी रही। समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था। फिर कद आवर आईने में अपना अक्स देखा तो फौरन समझ आ गया। गुस्से का शदीद उबाल उसके अंदर उठा था। बामुश्किल ज़ब्त करते हुए उसने निगाहों से जिहान को तलाशा। वो वही कुर्ता लिए काउंटर की तरफ जा रहा था। वो बदतमीज़ इंसान उसके नकाब को निंजा टर्टल की आंखों की पट्टी से तशबीह दे गया था। उसका मूड वापसी का सारा रास्ता ऑफ रहा, मगर वहाँ परवाह किसे थी। किचन में शाम की चाय दम पर चढ़ी थी। इलायची और तलते लबाबों की मिली जुली खुशबू सारे किचन में फैली थी। वो नूरबानो के सर पे खड़ी ट्रॉली में बर्तन रखवा रही थी। जिम्मेदार वो पहले भी थी, मगर तुर्की से आने के बाद हर काम अपने हाथ से करने लगी थी। अब भी नूरबानो से ज़्यादा वो काम कर रही थी। बाहर लॉन्च में ताया, फुरकान और साइमा ताई आए बैठे थे। अम्मा, अब्बा, फुप्पो और जिहान भी वहीं थे। काम करते हुए मुसलसल उसे एहसास होता रहा कि जिहान उसे देख रहा है,
मगर जब वो रुक कर गर्दन मोड़ कर देखती तो वो किसी और जानिब देख रहा होता। जिहान के साथ एक ही घर में वो 2 दफ़ा रही थी। एक जब डीजे की बार वो इकट्ठे पाकिस्तान आए थे तब उसे अपने गम से वक्त ना मिला था। दूसरा जब अपनी मंगनी की रात वो फुप्पो के घर रुक गई थी और तब जिहान को अपनी फ़ोन कॉल के इंतज़ार से वक्त ना मिला था। यूँ अब नॉर्मल हालात में पहली दफ़ा वो एक छत तले थे और अब उसे एहसास हुआ था कि वो बहुत बेज़रर, खामोश और धीमा सा इंसान था। ये उसका एटीट्यूड नहीं, फितरत थी। उसके पास से गुज़रते हुए वो सलाम लेता, हालो अहवाल पूछता और बस। हाँ, घर में फारिग रह रहकर वो उगता जाता तो नूर बानो के साथ किचन में कभी बर्तन धोने लग जाता तो कभी उसे सब्जियां काट कर देता। नूर बानो बेचारी हक्का पक्का रह जाती। अगर बाहर जाता तो सुबह जॉगिंग। उसे पहली दफ़ा मालूम हुआ था कि वो जॉगिंग, वॉक, वर्जिश इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखता था। फिर जब घर में बहुत बोर हो गया तो एक दफ़ा फातिमा के कहने पे हया उसे बाहर ले गई, मगर वो इतना तंग कर देने वाला था। यहाँ से मुड़ जाओ, वहाँ ले जाओ, नहीं लेफ़्ट से क्यों मुड़ रही हो, राइट से मुड़ो, क्योंकि मैं राइट हैंड ड्राइव कर रही हूँ जिहान। अब उसने अपनी गाड़ी की चाबी जिहान को दे दी थी। जिहान, जहाँ जाना है खुद चले जाओ, जैसे तासुरात के साथ। उसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस था, सो मसला नहीं था। अब वो कभी कभी बाहर निकल जाता। घर के करीब उसने जिम भी ढूंढ लिया था। जिहान के साथ रहने में एक मसला था, वो इतनी खामोशी से बिना चाप पैदा किए घर में दाखिल होता कि पता ही ना चलता और वो आपके पीछे खड़ा होता था। अब आते जाते चंद एक रस्मी बातों के अलावा वो उनकी बात ना हो पाती। चांदी के मुजस्समे या तो चटक चुके थे या बिल्कुल पत्थर बन चुके थे। आज भी वो उसे देख रहा था, मगर वो उसे पकड़ ना पाई थी। वो कुछ कहता क्यों नहीं है, उसे उलझन होती। वो अब बेएतबार करार देकर छोड़ आई थी। वो गिला क्यों नहीं करता, सफाई ना दे, मगर शिकायत तो करे, लेकिन वहाँ अज़ली खामोशी थी। वो ट्रॉली धकेलती लॉन्ज में लाई। दुपट्टा शानों पे फैलाकर उसने लंबे बालों को समेटकर कंधे पे आगे को डाला हुआ था। वाकई दिल तो नहीं करता, सिकंदर भाई को गए हफ्ता भी नहीं हुआ, मगर वो लोग समझते ही नहीं। जल्दी मचाई हुई है। साइमा ताई कह रही थी, शायद अरहम की मंगनी का मामला था। हया पंजों के बल कारपेट पे बैठी चाय के कप ब्रच में रखकर बारी बारी सबको पकड़ाने लगी। भाभी, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। जब हमें एतराज़ नहीं है तो लोगों का क्या है। आप अल्लाह पर तवक्कुल करके फंक्शन की तैयारी शुरू करें। फुप्पो बहुत रसान से वाज़ा कर रही थी कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। असल में असजद के भाई और भाभी बाहर से आए हुए हैं। उनकी मौजूदगी में वो फंक्शन करना चाहते हैं। थैंक्स। ताया ने मुस्कुराकर उससे कप पकड़ा तो वो वापस आई और आखिरी कप जिहान की तरफ बढ़ाया। वो जो गौर से अब ताई की बात सुन रहा था, ज़रा सी निगाह उठाकर उसे देखा और कप पकड़ लिया। वो
اتوار کا کہہ رہے تھے۔ تو بھائی آپ ہاں کر دینا، مجھے خوشی ہوگی۔ اتوار کا فنکشن، حیا نے سوچا، کیا پہنے گی؟ وہ چائے سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی اور الماری کھول کر کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کوئی سلیو لیس تھا، کوئی آستین شفون کی تھی، کسی کا دوپٹہ باریک تھا، اس کا ایک جوڑا بھی آئیڈل حجابی لباس پہ پورا نہیں اترتا تھا۔ دوسری الماری کو لاک لگا تھا۔ اس نے چابی نکالنے کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو انگلیاں مخملی ڈبی سے ٹکرائی۔ وہ مسکرا اٹھی۔ میجر احمد کا چیلنج، ڈولی کی امانت۔ اس نے ڈبی کھولی، سیاہ USB اندر محفوظ رکھی تھی۔ پزل باکس کھل گیا۔ جواہر کا لاکر بھی کھل گیا، مگر اس لاک کو کیسے کھولے؟ آخری لاک اس کی تو پہلی بھی نہیں تھی، مگر پہلی ہونی چاہیے تھی۔ میجر احمد نے پہلی کے بغیر کبھی کوئی پزل اسے نہیں دیا تھا۔ وہ تالے کے ساتھ اس کی چابی بھی ہمیشہ دیا کرتا تھا۔ اوہ، ڈبی تو میں نے دیکھی ہی نہیں۔ ایک دم اسے خیال آیا۔ وہ بیڈ پہ آ بیٹھی اور فلیش باہر نکالی۔ وہ صاف تھی، کوئی لفظ نشان وغیرہ نہیں۔ اب اس نے ڈبی اوپر نیچے سے دیکھی، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اندر رکھے مخملی فوم کو انگلیوں سے پلٹ کر باہر نکالا۔ نیچے ڈبی کے پیندے پہ سیاہ مخمل کا ایک اور ٹکڑا رکھا تھا۔ اس نے ٹکڑا نکال کر پلٹ کر دیکھا۔ وہاں سنہری دھاگے سے 2 الفاظ سلے تھے، اسٹوری سویپڈ۔ اس نے اچنبھے سے دہرایا۔ یہ فلیش ڈرائیو کی پہلی تھی۔ اس کو حل کر کے ہی وہ آخری تالا کھول سکتی تھی۔ مگر اس سطر کا مطلب کیا تھا؟ کہ کہانی کو سویپ کرنے سے کیا مراد ہو بھلا؟ کیا یہ سطر انگریزی گرامر کے لحاظ سے درست بھی تھی؟ ادل بدل کی گئی کہانی کو سویپ کرنے سے مراد تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ اپنی کہانی کسی کو پڑھنے دیں اور وہ بدلے میں اپنی کہانی آپ کو پڑھنے دے۔ اس عجیب سی سطر کا یہی مطلب نکلتا تھا، مگر کون سی کہانی؟ شاید پروفیسر گوگل کچھ کر سکے۔ یہی سوچ کر اس نے کمپیوٹر آن کیا اور گوگل پہ یہی الفاظ لکھ کر ڈھونڈا، مگر لا حاصل۔ 2 متفرق سے الفاظ تھے جن کو احمد نے جمع کر دیا تھا۔ یہ کل 12 حروف تھے۔ سو پاسورڈ نہیں ہو سکتا تھا، مگر پاسورڈ انہی میں چھپا ہوا تھا۔ رات سونے سے پہلے تک وہ انہی 2 الفاظ کو سوچتی رہی تھی، مگر کسی بھی نتیجے پہ پہنچنے سے قبل ہی نیند آ گئی۔